Hello everyone, Assalamu alaikum. So sorry for pretty much late today because I'm not at my home right now. So but I still managed to host workshop. All right, so welcome to our 17th workshop, which is hierarchical clustering. So just moment ago, I have decided to make a very easy workshop today. मैं आज काफ़ी टफ वर्कशॉप कराने वाला था, बट आई जस्ट थॉट के स्टूडेंट्स अभी भी क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं और क्लासिफिकेशन की जो टफनेस थी, जो रैंडम फॉरेस्ट में हमने देखी, उसमें अभी तक इन्वॉल्व हैं एंड दे स्टिल आस्किंग मी बट pretty amount of questions personally, and I'm usually late because it's very tough to answer every single person personally. That is why I usually force everyone to question in public and on Discord server. And क्लस्टरिंग के अंदर प्रोजेक्ट ना करवाने की वजह आज के दिन यही थी कि 3 दिन क्लस्टरिंग के परफॉर्म करने के बाद देन 4th day we can perform clustering as well. So just a moment ago I decided to fill the gap with another project. कोई मसला नहीं अगर हमारी 31 वर्कशॉप्स भी हो जाए, नेवर माइंड, बट वी विल बी डूइंग 31 और 30 वर्कशॉप, लेकिन क्लस्टरिंग का भी प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे. बट टुडेज वर्कशॉप इज़ वेरी इजी बिकॉज टुडे वी आर जस्ट गेटिंग अ फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ hierarchical clustering. इसके बाद hierarchical clustering के बाद वी गोना मूव टूवर्ड्स प्रोजेक्ट ऑफ क्लस्टरिंग. कल इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह क्लस्टरिंग के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे. अगर कल प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करा, परसों किया, तो फिर कल हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टार्ट ले चुके होंगे एंड देन इन द बिटवीन वी गोना परफॉर्म प्रोजेक्ट विच इज़ अ मस्ट थिंग, और अदरवाइज वी गोना बिल्ड प्रोजेक्ट टुमारो. एंड या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसके बाद स्टार्ट ले लेंगे बिकॉज रीइंफोर्समेंट लर्निंग की 2 ही एल्गोरिथम्स हैं. We are having deep learning after reinforcement learning, the basic foundations of deep learning after this reinforcement learning thing. So yeah, let's start it with hierarchical clustering. I hope everyone has joined today. Today is very good amount of people who have joined such early. Okay, so what is hierarchical clustering? By hierarchy, it itself is explaining that what type of clustering it is. तो हमने ट्री बेस्ड रिग्रेशन पढ़ा था. ऑल राइट, वी आर गोइंग टू बैक. ठीक है, हमने ट्री बेस्ड रिग्रेशन पढ़ा था, हमने ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज, and now we are at hierarchical clustering. It's nearly like a tree based clustering, but we don't say it a tree based clustering because it's not having the same nodes and same, you can say, roots, same leaves in this model, but we are having something very similar, very particular to that scenario, which we're gonna see here. Let me just, you can access this source code in my repository here. I have just uploaded few minutes ago. Let me send this code to Teams Q&A. You can access it from there. Let me ask. Oh, so sorry, let me send that. All right. So I have sent you the link as well. I hope Manova team member will share it in groups as well. कल हमारा project है या परसों हमारा project होगा clustering पे, and it will be tough. I hope everyone will be thrive into clustering algorithms by then. All right. So what is hierarchical clustering? Hierarchical clustering has 2 types: divisive methods and agglomerative method, and both are pretty same. It's like an ascending and descending order. Wait. All right. तो अब hierarchy clustering अगर हम बात करें, थोड़े विजुअलाइजेशन की अगर हम देखें, तो ये है हमारे पास hierarchy का clustering. ये आप देख रहे हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम. या कर रहा होता है जिस तरीका से ट्री हमारे पास होता है और वो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के मुताबिक वो अपने क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता है या रिग्रेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और वो एक तरीके से इफ एल्स जनरेट कर रहा होता है. लाइक इफ यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ वैल्यूज तो इसको इस तरह डिवाइड कर दो, इफ यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ वैल्यूज इसको इस तरह डिवाइड कर दो, अनटिल अनलेस हमारे पास जब तक जिनी मतलब इम्प्योरिटी रेट 0.0 ना आ जाए वो कंटिन्यू ऑन रहता है. But what is dendrogram and what is happening in hierarchical clustering? It's little bit different, but happening exactly like same. हो क्या रहा होता है इसके अंदर? First of all, hierarchical clustering will come. अभी हम methods की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ hierarchical clustering की बात कर रहे हैं. That how it makes hierarchy. Hierarchical clustering simply hierarchy form में चलती है. For example, in a data set, we are having this 6 data points A, B, C, D, E, F. ठीक है, हमारे पास ये 6 data points है. Now it has to classify all 6 data. It has to clusterize all 6 data points. अब ये किस तरीके से उसको क्लस्टराइज करेगा,
वी गोना सी हियर। ये डेंड्रोग्राम का मकसद ही यही होता है। फॉर एग्जांपल हायरार्की आएगा और तमाम का तमाम डेटा को क्लस्टर के अंदर ले लेगा, लाइक ABCDEF हमारे पास क्लस्टर के अंदर है। देन क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा दो हिस्सों में। इफ यू सी बाय योर आईज, तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा, AB अलग डिवाइड हो गया और CDEF को दो हिस्सों में अलग डिवाइड कर देगा। आर यू गेटिंग दिस? A और B अलग डिवाइड हो गया और CDEF फॉर एग्जाम्पल इसने अलग डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास दो क्लस्टर बन गए। अब ये मजीद इसको क्लस्टराइज करेगा बिकॉज वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं लिंकेज डिस्टेंस या लिंकेज मैट्रिक्स विच यू गोना सी वेरी सून। अब क्या होगा, हमारे पास A और B एक अलग क्लस्टर था, CDEF एक अलग क्लस्टर था, उसमें मजीद क्लस्टराइजेशन परफॉर्म हो रही है। अब A उसी के अंदर एक अलग क्लस्टर बन चुका होगा, B उसी के अंदर एक अलग क्लस्टर परफॉर्म बन चुका होगा, C उसी फिर दूसरे क्लस्टर के अंदर C एक बिल्कुल ही अलग क्लस्टर बन चुका होगा और फिर DEF एक अलग ही क्लस्टर बन चुका होगा। क्योंकि DEF की अगर हम देखें तो ये C से बिल्कुल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो DEF का एक अलग ही क्लस्टर बना चुका होगा। फिर ये मजीद DEF में जाएगा और देखेगा कि भाई EF साथ साथ है, D इसके ऊपर वाली हायरार्की में होगा, EF मजीद नीचे आके डिवाइड हो रहा होगा, तो D को अलग क्लस्टर बनाएगा, फिर जाके EF के पास आएगा, फिर EO को अलग और F को अलग कर रहा होगा। सो दिस इज हाउ दिस एल्गोरिथम परफॉर्म। अगर हम यहाँ पे देखें इस पिक्चर के अंदर, अगर हम देखें थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल इसके पास सारी वैल्यूज थी ABCDEF। समझें ये जो डैश है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ABCDEF। Then it clusterized two different groups of data, A, B और C, D, E, F। यहाँ पे हमारे पास A भी आ गया और B भी आ गया और C, D, E, F भी आ गया। अब A और B को उसने अलग से क्लस्टराइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इस एरिया में कोई और था नहीं, तो A और B अलग से क्लस्टराइज हो चुका है। फिर हमारे पास C, D, E, F था। अगर हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करें तो C इज प्रीटी फार फ्रॉम एवरी सिंगल डेटा पॉइंट इन दैट क्लस्टर। दैट इज द रीजन कि C जो होगा एक अपर हायरार्की में ही डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने C को अलग डिवाइड कर दिया है और DEF अभी अलग 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 ही है, बिल्कुल DEF अभी साथ ही है मतलब, और C को उसने बिल्कुल ही अलग ही क्लस्टराइज कर चुका है। देन इट विल कम फर्दर, और उसके बाद अब हमारे पास DEF है। अब नाउ इन दिस सिनेरियो DEF के अंदर हमारे पास EF बहुत ज्यादा साथ साथ है, बट D इज हैविंग अ पर्टिकुलर और हायर डिस्टेंस एज कंपेयर टू EF। तो D जो होगा उसकी अपर क्लस्टर अपर हायरार्की बन चुका होगा एंड D विल डिवाइड फर्स्ट बिफोर EF। तो यहाँ पे हमारे पास D की अलग क्लस्टरिंग डेवलप हो गई, अलग हायरार्की डेवलप हो चुकी है। देन वी गोना हैव EF इन सेपरेटली इन forthcoming step. So make sure कि यहाँ तक सबको समझ में आ गए। If not, so you can tell me again. I'm gonna किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। I'm gonna open Discord as well on my Discord app, and Discord app will not be visible here because that's an app. और उसके अलावा किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, अयान हैज आस्क्ड, तो इसमें नॉइज पॉइंट नहीं होगा। नॉइज पॉइंट बिल्कुल हो सकता है, डेटा के अंदर नॉइज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब ये क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहा होता है ना, इसका सिर्फ एक ही क्या कहते हैं, क्या किस तरीके से बताऊं, यू कैन से कि ये हर चीज को डिस्टेंस की बेस पे क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहा होता है, बिकॉज इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ मैटर, डिविजिव मैटर एंड एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, जिसको भी हम आगे जाके देखेंगे, जो कि एक दूसरे के मतलब एक्टिव पैसिव चीज है और ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं दैट व्हाट इज agglomerative clustering and what is divisive clustering, which are सब कैटेगरीज ऑफ hierarchical clustering। वैसे जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं आई गेस वो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी और वजह ये भी है बिकॉज एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग इज प्रीटी इन्वॉल्व इन द मार्केट। इंटरव्यूज के अंदर अगर आपको क्लस्टरिंग का क्वेश्चन आया, अगर हायरार्किकल क्लस्टरिंग का क्वेश्चन आया, सो आई एम प्रीटी मच गारंटीड वो आपसे एग्लोमेरेटिव पूछेगा, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दिए ना वो डिविजिव मेथड की एग्जांपल दिए। अब इसी को हम उल्टे लेके चलेंगे तो वही एग्लोमेरेटिव की एग्जांपल बन जाएगी। All right, all right, where it is used, अगर हम मशीन लर्निंग की स्पेसिफिकली बात करें तो मशीन लर्निंग के जितने भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है ज़्यादातर डेटा माइनिंग में ही यूज होता है, लेकिन इसके कुछ सर्टन रोल्स हैं।
जो बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब ये यूज होने लगा था तो ये सोशल नेटवर्क डाटा और कस्टमर सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के मींस भी यूज हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कस्टमर सेगमेंटेशन में और ऑनलाइन मार्केट के कितने कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, सो इन दैट सिनेरियो। लेकिन हायरार्किकल क्लस्टरिंग का काफ़ी मेजर रोल है टू एनालाइज सोशल नेटवर्क डाटा। और लार्जर ग्रुप्स हमारे पास इतने होते हैं तो उनको मजीद हायरार्की डेवलप चली जाती है बाय विद हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम। लेकिन ऑफ कोर्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हेल्प्स अ लॉट इन डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऑलराइट, आई विल रिपीट दिस वन अगेन। ऑलराइट, व्हाई वी अप्लाई agglomerative clustering and what advantage we get because it we get only one cluster। ऑलराइट, तो इसका सवाल बिल्कुल देते हैं। इसके अलावा किसी को कोई सवाल है जो कोई साथ में साथ जवाब दे दूंगा फिर एक साथ। कोई भी क्वेश्चन हो, सो आई एम गोइंग आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो चलते हैं वापसी नोटबुक की तरफ। लेट मी क्लोज दिस, इसको बंद ही कर दिया मैंने। ऑलराइट, लेट मी टर्न ऑफ माय कैमरा बिकॉज आज मेरा एंगल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ आई हैव कास्ट द एंटायर स्क्रीन। तो मुझे जरूर बताइएगा कि किस में ज़्यादा व्यू बेहतर रहता है। शुड आई कंटिन्यू लाइक दिस बिकॉज तो स्क्रीन पूरी आ गई होगी आप लोगों के पास। ऑलराइट, सो वी गोना कम बैक टू दिस नोटबुक नाउ। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी ना, वो एग्जांपल दी थी मैंने आपको किसकी, डिविजिव मेथड की। ये सिंपली क्या मेथड है, इट्स टॉप डाउन क्लस्टरिंग मेथड that we assign all the observations to a single cluster and then we divide in different partition of the clusters। पहले 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। और किस सिनेरियो में होते हैं कि उसका एविडेंस क्या होता है कि देयर इज समथिंग डिसिमिलैरिटी इन बोथ। अगर कोई करीब करीब भी होता है ना, so if there is any sort of dissimilarity in those point which algorithm can notice, तो वो उसको ना मजीद डिवाइड कर चुका होता है। ऑलराइट, सो इफ वी सी दिस, हमने जो जिस तरीके से इसको डिवाइड किया, लाइक वी आर गेटिंग ऑल ए बी सी डी ई एफ एंड देन वी आर डिवाइडिंग ए बी सी डी ई एफ इन इंडिविजुअल पार्टीशंस। सो ये सारा था डिविजिव मेथड। अब एग्लोमेरेटिव मेथड क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या फायदा होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू नो अबाउट एग्लोमेरेटिव मेथड, इसका जिसका नाम ही बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना कभी कभी। सो इन एग्लोमेरेटिव मेथड वी डोंट कम फ्रॉम टॉप टू डाउन, वी जस्ट गो फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं बिकॉज वी असाइन ईच ऑब्जर्वेशन टू इट्स ऑन क्लस्टर। अब हमारे पास ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है लाइक 1 2 3 4 5 6 और ए बी सी डी एफ, ये सारी की सारी हम डिफरेंट क्लस्टराइज में परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड देन वी गोना कंप्यूट द सिमिलैरिटी, मतलब कितना डिस्टेंस है बिटवीन ईच ऑफ द क्लस्टर्स एंड जॉइन द टू मोस्ट सिमिलर क्लस्टर। क्या मतलब ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू मतलब हम लोग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग परफॉर्म कर होते हैं। नाउ द मेजर क्वेश्चन व्हेन इट कम्स स्पेशली इन माय माइंड, जब मैंने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो what is the purpose of studying agglomerative clustering, or what is the purpose of using agglomerative clustering when we have same divisive method to make a same dendrogram? तो उसका जवाब जब मैंने अच्छी तरह ढूंढा तो मुझे ये मिला कि उसका जवाब ये होता है, we usually repeat some steps like 2 steps 3 steps until there is only single cluster left। ठीक है ना, और ये वही जाता है बाद में जाके जब ये बनती है ना क्लस्टरिंग, तो बनती डेंड्रोग्राम उसका बिल्कुल सेम बन जाता है। लेकिन एग्लोमेरेटिव मेथड के से इंडस्ट्री में क्या फायदा हो रहा होता है? समटाइम्स इन डेटा माइनिंग या डिविजिव मेथड को भी ना लें, इन डेटा माइनिंग अगर बात करें या बात कर ले न्यूरल नेटवर्क्स की या किसी भी चीज़ की क्लस्टराइजेशन की, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आते बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास सब्सिडायरीज बहुत कम है। इन रियल वर्ल्ड केस देयर माइट बी सो मेनी सब्सिडायरीज। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम योर सेल्फ अ जेफ बेजोस। ठीक है, आप अपने आप को 2 मिनट के लिए जेफ बेजोस समझ लें एंड एज्यूम दैट यू आर द ओनर ऑफ amazon.com। ऑलराइट, अब amazon.com पे आपको पता है कि देयर आर सो मेनी कस्टमर्स फ्रॉम ईच ऑफ द सिंगल डाइवर्सिटीज। ठीक है ना, आप गिनने में लग जाएंगे तो आपकी रजिस्टर खत्म हो जाएगा, यू कैन नॉट राइट एवरीवन्स कैटेगरीज।
इतनी तरह के हमारे पास कस्टमर्स होते हैं और सबकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। अब डिविजिव मेथड क्या करेगा, डिविजिव मेथड की अप्रोच इस सिनेरियो में स्लो हो जाती है जब हम क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट फर्स्ट इट विल टेक इंटायर क्लस्टर्स, देन इट गोना डिवाइड, ठीक है ना, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा जो ग्रुप का बंदा है वो किस क्लस्टराइज ग्रुप के अंदर आ रहा है। लेकिन एग्लोबरेटिव मेथड में क्या हो रहा होता है, वो स्टार्टिंग से सब हर बंदे को मतलब या हर ग्रुप को इंडिविजुअली डिवाइड कर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अयान नीड्स टू बाय अ मेडिसिन पैरासीटामोल, ठीक है, और मैंने भी एक मेडिसिन बाय करनी है। मैंने बाय करनी है पैरासीटामोल विद कैफीन। अगर हम लेमन में जाए तो पैरासीटामोल यूजुअली सोल्ड एज पेनाडोल हेयर, और हम एक पेनाडोल एक्स्ट्रा भी होती है। सो वी हैव डिफरेंट मेडिसिन बट फ्रॉम अ सेम ग्रुप, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना डिविजिव मेथड की, तो वो डिवाइड करते 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 एक लेवल पे आएगा कि अयान और मेरी मेडिसिन अलग हो रही होगी, ठीक है। और तब फिर उसको वापसी पीछे आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हम कौन से ग्रुप से ताल्लुक रख रहे थे। हम एक पेरेंडोल के ग्रुप से ताल्लुक रख रहे थे। एग्लोमेरेटिव में ऐसी ऐसी कहानी नहीं होती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा भाई, वो बोलेगा एक पेराडोल वाला बंदा है, एक पेराडोल एक्स्ट्रा वाला बंदा है। वो ऊपर जाएगा और बोलेगा भाई ये सेम ग्रुप है पैरासीटामोल का, ये इसी से लाया करते हैं। इट नॉट नीड्स टू गो अप टू एंड टू दी, मतलब जो सबसे लास्ट क्लस्टरिंग हमारा होगा जहाँ पे जाके हमारा क्लस्टर सिंगल क्लस्टर बन जाए, उसको वहां तक जाने की जरूरत ना पड़े। So usually agglomerative method is the best approach when we perform hierarchy clustering in our daily lives, अगर कभी जरूरत पड़े, and especially in data mining which reduces the time complexity and space complexity of course. So that's all. टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप का फर्क है। फर्क कहाँ आ रहा था, किस चीज का फर्क आ रहा था, इसकी एप्लीकेशन में क्या फर्क था? That is why we have this method. Let me see some Q&A. Is hierarchical clustering perform well for the dataset, textual dataset that we used last time? Yeah, it can perform pretty well. You can check that out कि किसमें सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहा है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, के मीन्स किसी एक में आके ब्लेंड कर गया था, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इफ hierarchical clustering is doing better than k means or not. But hierarchical clustering is majorly used for customer segmentations. अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो कभी रियल वर्ल्ड में इतना खास कोई यूज़ नहीं करा है, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो प्रोजेक्ट्स होते नहीं है मशीन लर्निंग के ऊपर। अगर होते हैं तो क्लासिफिकेशन पे होते हैं या रिग्रेशन पे होते हैं। सो अनसुपरवाइज की जब बात की जाती है तो अनसुपरवाइज इज बेसिकली द बैकबोन टू जंप टूवर्ड्स, यू कैन से, न्यूरल नेटवर्क्स। फिर न्यूरल नेटवर्क्स में हम जब आ जाते हैं तो फिर देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ लर्निंग। मशीन लर्निंग में तो ट्रांसफर लर्निंग होती ही नहीं है, ट्रांसफर लर्निंग सब डीप लर्निंग के अंदर है। अभी हमने सब सुना है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी एक ट्रांसफर लर्निंग भी आएगी जो कि प्योरली स्पेसिफिक टू कंप्यूटर विजन, और दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यू विल सी दैट, दैट्स माय फेवरेट वन, और बहुत ज्यादा मुझे पसंद है वो। ऑलराइट, इस ओके, अब आके वापसी चलते हैं। कोई और सवाल तो है नहीं किसी को? ओके, लेट मी कम डाउन। So we'll start as according to our commitment. 8:20 पे हम usually start कर देते हैं अपनी वर्कशॉप, मतलब implementation. So now we're gonna start our implementations. आज की वर्कशॉप बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर जाकर बिल्कुल मतलब उसके बाद छोड़ दें। प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस वेल। मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट के अंदर बाद में आप लोगों को इश्यूज हो रहे हो और फिर मुझे हायरार्की क्लस्टरिंग समझाने में इतना टाइम लग जाए कि हमारी वर्कशॉप 2 घंटे की हो जाए। All right, so now here we are importing matplotlib.pyplot as PLT and for data visualization. मैं यूजुअली गिटहब पे लिखना भूल जाता हूँ, सो डोंट वरी, यू कैन राइट। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि बाद में कोई अगर लेट ज्वाइन करा उसको पता हो कि why I have read this. All right, scipy.cluster.hierarchy import linkage and dendrogram. Model of the day. आज तक हम लोग scikit-learn यूज करते आए फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग वी हैव टू यूज स्काईपाई, बिकॉज मुझे हायरार्की क्लस्टरिंग का मॉडल जो एसक्यूएल में वो सही समझ नहीं आ रहा था। इट इज, और वो बीटा के अंदर भी है, इट्स नॉट, इट्स इन प्रीव्यू वर्जन, वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इट्स स्टिल अंडर द डेवलपमेंट। तो scikit-learn से इसलिए हम लोग अभी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज नहीं करेंगे।
तो इन करंट जनरेशन अगर कहीं यूज करना पड़ जाए, सो वी यूज स्काईपाई फॉर दिस हायरार्किकल क्लस्टरिंग। यहाँ से स्काईपाई डॉट क्लस्टर डॉट हायरार्की में से आप क्या इंपोर्ट करोगे, एक लिंकेज इंपोर्ट करोगे और डेंड्रोग्राम इंपोर्ट करोगे। डेंड्रोग्राम बेसिकली एक विजुअलाइजेशन फॉर्म कर रहा होगा क्लस्टर क्लस्टर की, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। और ये जो लिंकेज है ये बेसिकली दिस इज एल्गोरिथम ऑफ नियरेस्ट पाथ फाइंडर, इस तरह कुछ है जो भी हम आगे जाके देखेंगे, नियरेस्ट पॉइंट एल्गोरिथम। तो ये आगे इसको भी थोड़ा समझेंगे। तो इन दोनों को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। देन वी आर टुडे आर वर्किंग नॉट ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, वी गोइंग टू वर्क ऑन दैट विद इन आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम मॉक डेटा जनरेट कर रहे हैं बाय मेकिंग ब्लॉग्स। ओके, sklearn.dataset.sample generator import make blobs। अब यहाँ पे हम जो डाटा बनाएंगे वो इस तरह की शक्ल होगी कुछ, जिसको अभी हम बना के देखते हैं दैट हाउ इट गोइंग टू परफॉर्म इट। तो यहाँ से हमने ये भी इंपोर्ट कर लिया है। देन वी हैव इंपोर्टेड numpy np फॉर मेकिंग एरे एंड अदर टाइप ऑफ स्टफ। तो यहाँ से हम डाटा सेट को रीड जनरेट कर लेते हैं। मेरे सारे साथ रन कर रहा हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ पे हम बेसिकली डाटा जनरेट कर रहे हैं, जनरेटिंग मॉक डाटा इन ब्लॉब्स फॉर्मेट या ब्लॉब्स नेचर। नेचर बोल रहे हैं, एफिनिटी बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी भाई हमारे पास डाटा जो है ना ये इस तरह का आ रहा है। यार ये बहुत कम डाटा है मेरे ख्याल से, सैंपल थोड़ा बढ़ा देते हैं। असल में ये कम में इसलिए लिए थे ताकि डेंड्रोग्राम जो है ना आपको समझ में आए, ये नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। लेकिन अभी पहले बढ़ा देते हैं, बाद में डेंड्रोग्राम तो आप लोगों को समझ में आई गई कैसे बनती है। ऑलराइट, अब थोड़े से ना नजर अच्छे भी लग रहे हैं, थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, अच्छे भी लग रहे हैं। इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं और फिर से थोड़ा साइज रन कर लेता हूँ एक साथ। ओके, ज्यादा ही हो गया, अभी ये थोड़ा कम कर लो। ऑलराइट, ये अब डाटा ज्यादा ही बन रहा है इतनी कम रेंज के अंदर, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा तो सेपरेट करो भाई, इतना भी मिक्स नहीं करो कि बच्चों को समझ ही ना आए। ठीक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सेपरेट तीनों ही है। अभी तो खैर हम लोग थोड़ा आसान डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, आगे जाके फिर थोड़ा सा मुश्किल पे भी हाथ साफ करेंगे अपना। सो यू ऑलरेडी नो दिस हाउ वी जनरेट दिस डेटा सेट। यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया मेक ब्लॉक, जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने पास कर दिया भाई n सैंपल इज इक्वल टू 80। ब्लॉब्स के अंदर हम नॉइज नहीं देते हैं, नॉइज हम देते हैं जब हमें मूव्स डेवलप करने हो। तो अभी हम मूव्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम ब्लॉब्स पे काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट मेंशनिंग नॉइज। अगर आप यहाँ पे नॉइज मेंशन कर दोगे सो इट गोइंग टू जनरेट एन एरर। सो वी हैव मेक ब्लॉब्स हियर एंड इट इज रिटर्निंग अ ट्यूपल ऑफ x एंड y। हमारे पास एज ऑलवेज x के अंदर दो कॉलम्स होंगे, जिसको अगर हम व्यू कर लें यहाँ पे, तो एक कॉलम ये आ रहा है और एक कॉलम ये आ रहा है। इट्स ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू एरेज, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एरेज। हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है, बट वी डोंट। लेकिन ये जो हमारे पास दो कॉलम्स आ रहे हैं ना, हम इसकी आपस में पैरेलल जो है ना विजुअलाइजेशन कराते हैं, y के साथ विजुअलाइजेशन नहीं करा रहे होते। दैट इज व्हाई वी हैव टू सेपरेट बोथ कॉलम्स इनटू x1 एंड x2 एंड here we have separated both columns। यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने कल पढ़ा था that this represents rows and columns, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x के अंदर हम जब कॉलम डालेंगे तो इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं एक दफा। ओके, दिस मीन्स ऑल, ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि जहां जहां हमने ये लिखा है ना, मतलब रोज की जगह पे हमने कॉलम डाल दिया, सो इट मींस दैट इट्स गोइंग टू इंपोर्ट ऑल रोज इन द अवेलेबल डेटा सेट। और यहाँ पे हमने लिख दिया 0 और 1, सो इट मींस इट गोइंग टू वी आर स्पेसिफाइंग सर्टन कॉलम। तो मतलब एक में हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया विच इज हैविंग 0 इंडेक्स, एंड देन इट्स गोइंग टू इंपोर्ट सेकंड कॉलम इन x2 विच इज हैविंग 1 इंडेक्स। हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम जो है हमारे पास x के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स में सेपरेट हो चुके हैं। So all right, we're going to visualize this. Simply mention here visualization. मैं इसको अपडेट कर दूंगा अपने GitHub पे इन्हीं कमेंट्स के साथ, so don't worry, मैं इसको रीकमेंट कर दूंगा। ऑल राइट, तो ये भाई हमारे पास जो है विजुअलाइजेशन परफॉर्म हो चुकी है, आप ये देख सकते हो।
अब हमारे पास क्योंकि ब्लॉब्स का डेटा जनरेट किया था हमारे पास, तो बाय नेचर डेटा के अंदर ऑलरेडी 3 कैटेगरीज हैं। ओके, ऑलराइट। देन वी आर हैविंग नियरेस्ट पॉइंट एल्गोरिथम, लिंकेज मैट्रिक्स जिस जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज नियरेस्ट पॉइंट एल्गोरिथम, ये आप अगर कभी चाहें यूट्यूब पे या कभी इसके ऊपर जब प्रोजेक्ट होगा ना, तो मैं आपको एक, अभी मेरे पास पेन नहीं है, डिजिटल पेन नहीं है घर पे, मैं डिजिटल पेन यूज करके देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, और मैं नहीं तो यूट्यूब से इसको शेयर कर दूंगा कोई ऐसा यूआरएल जो उर्दू के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दे बाय मैथमेटिकल परफॉर्मेंस। लेकिन अभी इसको हम देखते हैं दैट हाउ इट गोइंग टू वर्क। इसको हम लिंक वी यूज लिंकेज मैट्रिक्स, ऑलराइट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस लिंकेज मैट्रिक्स, क्या कर रहा होता है। अब जैसे कि हमारे पास डाटा सेट के ऊपर, ये जो हमारे पास डाटा सेट था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान कोई ना कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस जरूर होगा। किसी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, आई यूजुअली गेट दिस क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस एंड आई ऑलवेज से इक्लोडियन फार्मूला। आई गेट टू नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को इक्लोडियन फार्मूला मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज इक्लोडियन फार्मूला, व्हिच इज द मोस्ट बेसिक वन। सो इक्लोडियन डिस्टेंस फार्मूला ये है जो हम मैट्रिक में करके आ रहे थे या ओ लेवल्स में कर आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स क्लास 8 में भी शायद कर आ गए हो। लाइक एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, सो वी यूज दिस काइंड ऑफ फार्मूला, जिसके अंदर हम अगर p को आप x ले लें, लेट मी शो डिफरेंट इमेज, हो गया। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमने q1 ले लिया, मतलब अब एक हमारे पास xy होगा तो उसको हम x1 y1 ले लेंगे, दूसरा xy जो होगा हमारे पास x2 y2 ले लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे x1 माइनस जो है हम इस तरह की से वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे q की जगह x कर दें और p की जगह भले से y कर दें, नेवर माइंड। तो भाई ये हमारे पास इक्लूडियन फार्मूला है, इसकी आप आसानी से देख सकते हैं नेट के ऊपर फार्मूला किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। ये हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। बाय द वे आई डोंट नो व्हाई इट्स रिटन p माइनस q, लेकिन यूजुअली x1 माइनस x2 होता है। मैं ज़रा वो भी देख लूँ अगर आपको दिखा दूँ, या ऑल राइट, ये मिल गया मुझे, ऑल राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको x1 माइनस x2 कर दें, x2 माइनस x1 कर दें, आंसर एक ही आता है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर नेगेटिव आ भी रहा हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं बनता। x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट डिस्टेंस थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा होता है। ऑल राइट, सो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट एल्गोरिथम इस तरह ये डेवलप हो रहा होता है। लाइक P1 ये कह लें या पॉइंट 1 कह लें, पॉइंट 1 से पॉइंट 1 के दरम्यान क्या डिस्टेंस होगा, मतलब मैंने इस पॉइंट को पॉइंट 1 करार दिया है। अब मैं इसी को कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के और इसी पॉइंट के दरम्यान का डिस्टेंस होगा, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट खुद वहीं खड़ा हुआ है, तो उसके दूसरे उसके दरम्यान डिस्टेंस कैसे नाप सकते हो। तो जाहिर सी बात है P1 और P1 को जीरो आएगा, इस तरीके से P2 को भी जीरो आएगा, P3 को भी जीरो आएगा, P4 को भी जीरो आएगा, और P5 को भी जीरो आएगा, क्योंकि वो तो खुद वहीं खड़ा हुआ है। वहां से आप उसका तक का डिस्टेंस कैसे ले सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट कैसे ले सकते हो आपके पास जब कोऑर्डिनेट्स ही सेम होंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हो, लाइक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है, इसके दरम्यान का हमें डिस्टेंस मालूम करना, तो इसके दरम्यान का जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इक्विवेलेंट फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 के दरम्यान जो हमारा डिस्टेंस बनता है वो 9 बनता है। सो इन दैट सिनेरियो, अच्छा, अब यहाँ पे भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 9 लिख सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली ट्राइंगल बेस बना रहे होते हैं मैट्रिक्स, 9 यहाँ पर भी आना, 9 यहाँ पे भी आना, चाहे यूं कर लें या 1 2 यूं कर लें, आंसर आपका 9 ही बनेगा। तो फॉर एग्जांपल 9 हमारे पास बन रहा है, फिर 2 और 3 का क्या बनेगा, हमारे पास 3 बन रहा है। अब सॉरी 1 और 3 का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। 2 और पॉइंट का, ये 3 पॉइंट के दरमियान क्या डिस्टेंस बन रहा है, 7 बन रहा है। तो हमारे पास ये सारे जो है ना डिस्टेंस जनरेट हो गए। अब इसमें सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है हमारे पास 2। तो ये एक तरीका होता है कि आप नियरेस्ट पॉइंट एल्गोरिथम का, क्या आप हाउ वी मेजर विच इज हैविंग द विच इज वेरी प्रीटी नियर टू डेटा पॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉइंट्स हो P1 P2 P3 किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हो सकता है ये P1 हो, ये P2 हो, ये P3 हो, ये P4 हो, ये P5 हो। क्या पता P5 आपके बिल्कुल बराबर में हो लेकिन P1 आपसे P2 आपसे बहुत दूर हो।
So that is why we have to use this algorithm, which is also known as linkage matrix, because it returns a linkage matrix जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिस्टेंसेस डेवलप हो रहे होते हैं. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं, कुछ अच्छी खासी डिस्टेंस के अमाउंट में रखते हैं, कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ में है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगी. तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज प्रोड्यूस हो गई हैं. अगर हम इसको जस्ट प्रिंट करें, यहाँ पे हमने कंप्लीट इसलिए पास किया ताकि हमारे पास कंप्लीट जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए. दैट इज व्हाई वी हैव पास हियर कंप्लीट, और हमने इसको लिख दिया है प्रिंट लिंकेज मैट्रिक्स, वरना ये प्रिंट नहीं करता. सो हेयर वी हैव द एंटायर मैट्रिक्स. अब जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट है ना, ये उतना ही बड़ा, उसके उसी के मुताबिक कंपैरिजन के अंदर ये जो है ना हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है. अब हम अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आई मीन के इसको डेटा को छोटा कर दे तो उतना ही मैट्रिक्स हमारे पास छोटा हो जाएगा. लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा ना, जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि ये जो है ना हमारे पास 0 0 0 0 0 0 इस तरह चलेंगे. लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको इस यहाँ पे नहीं दिखते होंगे, बिकॉज इन दिस सिनेरियो वी आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स है. तो इसको यहाँ पे मत मेजर करना शुरू हो जाएगा, यार यहाँ पे क्यों 0 0 ऐसा आ रहा. अगर यहाँ पे 0 0 ऐसा आएगा वो तो फिर यूं चलेगा, फिर मतलब जिग जैग चलता रहेगा. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी परफॉर्म हो रही होती है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे जिस दिन हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे. उस दिन मैं पेन से समझाऊंगा स्क्रीन पे कि हाउ वी परफॉर्म दिस मैथमेटिकली एज वेल. और यूट्यूब की वीडियो भी शेयर कर दूंगा, एक इंडियन है, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है इस तरह के एल्गोरिथम से. सो यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम देयर एज वेल. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लिंकेज मैट्रिक्स? एनी क्वेश्चन गाइस? अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज. ऑलराइट, सो समवन हैज सेड कैन वी यूज नियरेस्ट नेबर्स फॉर कैलकुलेटिंग distance like we did yesterday for this algorithm? देखिए, nearest neighbor, yes, we can use nearest neighbor, but problem is that we have to pass entire matrix. Nearest neighbors never tell you the entire matrix of all data points. तो हमें linkage matrix इसलिए यूज करना पड़ता है because linkage matrix returns the entire मैट्रिक्स, और फिर वो उस मैट्रिक्स को हमें पास करना होता है क्लस्टरिंग के फंक्शन के अंदर. तो उस क्लस्टरिंग के फंक्शन के अकॉर्डिंगली डेंड्रोग्राम डेवलप होता है, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, एक मेन एल्गोरिथम हमारे पास लिंकेज मैट्रिक्स है, और एक मेन एल्गोरिथम जो कि ये प्लॉटिंग कर रहा है वो है डेंड्रोग्राम. ठीक हो गया? तो ये आप देख लो, ये हम यहाँ पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स पास कर रहे हैं. हम यहाँ पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख नहीं सकते थे. That is why we have first developed the linkage matrix, and then we have passed this into this dendrogram function. और dendrogram में हम linkage matrix लिख देंगे. अभी हम truncate mode यूज नहीं कर रहे हैं. और राइट, अगर हम इसको काट भी दें, आई डोंट थिंक सो कि कोई खास इशू हो, बिकॉज मेरे ख्याल से ये बाय डिफॉल्ट नन होता है. लेट मी सी, एरर जनरेटेड, लेट मी रीरन ऑल. ऑलराइट, तो यह ऐसे कोई खास फर्क नहीं है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं है. सो नाउ वी हैव फॉर्म द क्लस्टरिंग ऑफ द एंटायर डेटा सेट. हमारा डेटा सेट इतना ज़्यादा तवील नहीं था, वी वर जस्ट हैविंग 80 सैंपल्स, और 80 सैंपल्स के पहले इसने परफॉर्म किए 80 क्लस्टर्स. अगर आप इसको गिनने बैठ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं पर ही हो गया. 10 20 30 40 50 60 70 80, पूरे 80 क्लस्टर नीचे परफॉर्म है. उसके बाद उनकी सब हायरार्की जो है अपर हायरार्की है, फिर उनकी मजीद अपर हायरार्की है, फिर उनकी मजीद अपर हायरार्की है. अब इसको देखते हुए आप खुद पहचान सकते हो कि ये हमारे पास डाटा के अंदर भी ना 3 डिफरेंट नेचर्स अवेलेबल हैं, बिकॉज डेंड्रोग्राम ने जो फिगर डेवलप किया ना हमारे लिए, वो 3 डिफरेंट कलर से बनाई है, ग्रीन, रेड, ब्लू. ये क्यों 3 डिफरेंट कलर्स में आ रही है हमारे पास? क्योंकि अगर हम डाटा को देखें ऊपर, तो हमारे पास 3 डिफरेंट ब्लॉब्स बन रहे थे. पहले तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अभी जो डाटा थोड़ा चेंज हो गया मेरे ख्याल से. अच्छा, ये हमारे पास 3 डिफरेंट ब्लॉब्स हमारे पास बन रहे थे. एक ब्लॉब यकीनन ये बन रहा होगा, फिर एक ब्लॉब ये बन रहा होगा, फिर एक ब्लॉब ये बन रहा होगा. तो ये हमारे पास ये 3 डिफरेंट ब्लॉब्स डेवलप हुए थे. तो ये 3 डिफरेंट ब्लॉब्स की जो जितनी भी हायरार्कीज थी, सबको से डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है. फिर जब वो अपर हायरार्की में जाके किसी स्पेसिफिक, या आप कह रहे हैं तमाम जो मेन हायरार्की पे था, नोड पे जा रहा था, तो उसने उसको बिल्कुल ही अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया.
अब अगर हम देखें तो इसने ग्रीन को कौन सा रिप्रेजेंट किया होगा और रेड ब्लू को कौन सा रिप्रेजेंट किया होगा। सो आई एम प्रीटी श्योर कि जो ग्रीन है ना, तो इसको उसने पहले ही डिवाइड कर दिया और रेड ब्लू बाद में डिवाइड किया। तो अगर हम डाटा के अंदर यहाँ पे देखें तो ग्रीन बिल्कुल ये होगा जो यहाँ पे सबसे पहले अलग से डिवाइड हो रहा है। रेड और ब्लू आपस में ये दो होंगे क्योंकि ये दोनों से मिक्स चल रहे हैं, लेकिन ये काफी ग्रीन इन सब से ही अलग है। तो ये हमारी क्लस्टरिंग थी, बहुत सिंपल सी हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये बिल्कुल मॉक डाटा के ऊपर थी, आज सब एक सिंपल सी एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग थी। लेट मी ओपन Q&A इन डिस्कॉर्ड एज वेल टू लिसन अबाउट सम Q&A. Okay. Linkage computes distance between x1 and x2? Question mark. All right. Yeah, you can say that because देखें, let me move towards graph. This is x2 of course, and this is the horizontal one is x1. So अब for example ये x1 है, अब each point has its own x1 and x2 value particularly, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट कहीं भी प्लॉट हुआ हुआ होता है तो उसकी कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होगा, कोई वर्टिकल एक्सिस भी होगा। फिर जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की वैल्यू निकालनी है उसका भी x1 होगा हमारे पास, उसका भी x2 होगा। तो जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो किस इस तरीके से हो रहा होगा कि भाई दोनों का x1 होगा और दोनों का x2 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसको दैट x1a माइनस x1b, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस माइनस है प्लस है जो भी है, मैं भी भूल गया देखो, प्लस है सॉरी। सो एंड देन वी गोइंग टू परफॉर्म के y स्क्वायर सॉरी x2a प्लस x2b होल स्क्वायर, उसको प्लस करने के बाद फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें एंड देन वी कैन हैव डिस्टेंस ऑफ बोथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट्स। तो x1 x2 दोनों दोनों पॉइंट में यूज हो रहे होते हैं। All right, someone has shared the YouTube link for basic intuition. 5 minutes engineering is good. Request for broadcasting. All right. So yeah, I know this guy. और मैं मजे की बात है कि इसी के बारे में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं and it explains mathematics pretty well. Let me show you guys. Good, good suggestion. This guy has very ये बहुत आसानी से समझाएगा आपको, क्या आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा। सो ही इज़ द गाय, आई नो हिम फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी टाइम, ठीक है ना। मैं इसको अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से जानता हूँ और जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ने स्टार्ट करी थी मैं तब से जानता हूँ उसको। ही इज़ अ वेरी गुड वन व्हेन टीचिंग mathematics. You can learn mathematics from him as well. You can learn the core intuition of algorithm from him as well. Never be specific towards me. I can make mistakes as well. So be wide towards all sort of मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त इसके 2 के सब्सक्राइबर थे, आज माशाल्लाह से इसके 160K के करीब हो गए। 2000 से कहाँ चले गए। ऑल राइट, सो गाइज एनी फर्दर क्वेश्चंस? अच्छा, ये आउटपुट क्या शो कर रहा है? ओके, लेट मी शो यू। ये आउटपुट शो कर रहा है डेंड्रोग्राम। अगर हम बात करें डेंड्रोग्राम की या विजुअलाइजेशन की, कि हमारे जो डाटा पॉइंट्स थे किस तरीके से यहाँ पे डेंड्रोग्राम डेवलप हो रहा है, तो वही यहाँ पे डेंड्रोग्राम इस तरीके से डेवलप हो रहा है। लेट मी ब्रिंग दिस विजुअलाइजेशन हेयर एज वेल, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें साथ साथ हों तो समझ में आ जाएगी। ये जस्ट मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ लेकर आ रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। ये डाटा सेट हमारा था। अब थोड़ा डाटा सेट चेंज करते हैं। मैंने सारा कुछ रीरन कर दिया, डाटा सेट थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, तो उसने 2 ही ब्लॉक बना दिए। नहीं भाई यार, 3 तो बनाओ, ऐसा नहीं करो। राइट, मेरे ख्याल से अभी भी 2 या 3, 2 ही है, हाँ। अब बनाया ना 3 ब्लॉब इसने। सो नाउ वी आर हैविंग 3 ब्लॉब्स, अब तीनों अलग अलग हैं। तो ये देखो ना, तीनों डिफरेंट एक साथ डिवाइड हो रहे होंगे। चलिए, एक साथ डिवाइड नहीं करे, शायद इसने इसको एक अलग साथ डिवाइड कर दिया। पहले इसने इन दो को डिवाइड किया, फिर इन दो को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं क्लस्टर्स, ठीक है। each single point is representing its own cluster। यहाँ पे each single point its own cluster value।
आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर यहाँ है, ये सारे क्लस्टर हैं। अगर हम इसको मजीद थोड़ा सिंपल करना चाहें तो मैं यहाँ पे इसी की तरह ना 10 वैल्यूज ले लेता हूँ, ताकि आपको ना क्लस्टर समझने में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी 10 वैल्यूज पे ना हम क्लस्टरिंग परफॉर्म करेंगे, सो देन वी वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू। भाई एक ब्लॉब यहाँ पर आ गया है, एक ब्लॉब यहाँ पे, एक ब्लॉब यहाँ पे, 3 वैल्यूज का ब्लॉब यहाँ पे, एक 3 वैल्यूज का ब्लॉब यहाँ पे, एक 3 वैल्यूज का ब्लॉब यहाँ पे। तो हमने इस पे क्लस्टरिंग परफॉर्म की है। अब ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, और ये उन सब के ऊपर ना जनाब क्लस्टरिंग हो गई है परफॉर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लस्टर्स हैं हमारे पास सबसे नीचे वाले लेवल पे। अब इसको डायग्राम से कैसे लिंक करेंगे? अच्छा, ये बोल रहे कि 5 2 4 का एक अलग क्लस्टर है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाए 8 0 7 का अपना ही क्लस्टर है, 1 9 का 3 6 का अपना अपना क्लस्टर है। ये किस चीज़ की बेसिक पे परफॉर्म कर रहा है? अगर हम यहाँ देखें ना, अभी जो 4 वैल्यूज है, इसने इन दो को अलग बना दिया होगा, इन दो को अलग बना दिया होगा, और फिर मजीद डिवाइड किया। 1 9 अलग है बिल्कुल, और 3 6 ना बिल्कुल ही अलग है, जिस तरीके से इसने बनाया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देन वी आर हैविंग 5 2 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें 5 2 4 कौन से हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ये तीन होंगे शायद, या ये तीन होंगे कि इसने पहले 5 को अलग डिवाइड कर दिया है, और फिर 2 4 बिल्कुल अलग डिवाइड हो रहा है। फिर हमारे पास 8 0 7 है, तो मतलब एक अलग डिवाइड कर दिया, दो को अलग डिवाइड कर दिया, बाद में ये दो अलग अलग जाके डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से सब्सिडायरीज डेवलप हो रही होती है, इस तरीके से हायरार्की डेवलप हो रही होती है, और हमारे पास यहाँ पे क्लस्टरिंग परफॉर्म हो जाती है, और एक डेंड्रोग्राम फिगर बन जाती है। इस फिगर को बोलते हैं हम डेंड्रोग्राम। एनी फर्दर रेलिवेंट क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? आप तो सवाल पूछ लो यार, कल पे सवाल होंगे। मैं नहीं चाहता कल इतने ज़्यादा सवाल हों कि टाइम हमारा स्पेंड हो रहा हो। इनिशियल पे चाहता हूँ सारे एल्गोरिथम्स कल आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए क्लस्टरिंग के। ऑल राइट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग? गुड क्वेश्चन। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें ना, तो क्लियर एडवांटेज अगर बात करें जो दूसरे अनसुपरवाइज्ड मेथड्स हमारे पास, सो किस तरह की बताऊं कि हमारे पास इसमें ना बहुत बेहतरीन किस्म की डाइवर्सिफिकेशंस होती हैं। एवरी इट इंश्योर्स यू ऑल इम्पार्शियल एंड इक्विवेलेंट क्लस्टर्स। हमारे पास हर चीज़ एक बड़े प्रिसाइज लेवल पे क्लस्टर डेवलप हो रहा होता है। अगर हम दूसरे एल्गोरिथम पे जाएं, डीबी स्कैन या के मींस, वी मे हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉइज इन क्लस्टरिंग एज वेल। कुछ चीज़ें मिस क्लस्टराइज भी हो सकती हैं कि भाई मैंने बोला कि देर वर 100 मेल एंड 20 फीमेल, but machine learning don't know what is male, what is female. We are not having any sort of क्या कहते हैं labels. So now machine learning is clusterizing all the people in the room we are having. तो भाई उसने जो क्या पता दो वुमेन जो है उसने मेल में भेज दियो, और दो मेल उसने वुमेन में भेज दियो। सो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट विच वी कैन हैव इन नॉइज। अब नॉइज कैसे हो सकता है अगर हम ह्यूमन एग्जांपल में देखें, तो फॉर एग्जांपल भाई अब वो फीचर ले रहा हो, लाइक वी आर लुकिंग टूवर्ड स्पेस, ठीक है ना, आपको फीचर ले रहा हो इस तरह के, भाई यूजुअली गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर्स, लेकिन अगर एक आ गया एक वैसा मर्द जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, एंड ही इज क्लीन शेव्ड एज वेल, बहुत ज़्यादा ही किस्म का, तो फिर क्या हो सकता है कि वो बंद शख्स मिसक्लस्टराइज हो सकता है। इट कैन बी ही कैन बी इन वुमेन ग्रुप एज वेल। इसी तरह वुमेन के साथ भी हो सकता है, इफ वुमेन इज लाइक अ टॉम बॉय, और ये लाइक यू कैन से कि ही इज शी इज हैविंग वेरी शॉर्ट हेयर्स, और बिल्कुल मतलब मर्दों वाली हुलिया रखा हुआ है। शी इज सेम, शी इज स्टिल अ फीमेल, बट हुलिया उसका मर्दों वाला है, सो इट कैन मिस क्लस्टराइज हर। लेकिन हमारे पास हायरार्की क्लस्टरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। हायरार्की क्लस्टरिंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो औरतों के अंदर ही, वुमेन्स के अंदर भी कितनी मजीद डाइवर्सिटीज क्रिएट कर देगा, लाइक डाइवर्सिटी ऑन डिफरेंट बेसिस, छोटी बड़ी, ठीक है ना। अगर हम हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हमारे डाटा के अंदर ये फैक्टर है कि भाई हाइट वाइज डाइवर्स कर दो, तो हाइट बाय डाइवर्सिटी डेवलप कर देगा कि भाई जितनी 5 5 की कैटेगरी के अंदर वो अलग हो जाए, जितनी 6 फीट की कैटेगरी में वो अलग हो जाए, जो अंडर 5 की कैटेगरी में वो अलग हो जाए।
सो दिस इज हाउ इट परफॉर्म हायरार्की क्लस्टरिंग, और कोई डाटा हमारे से इससे अपनी प्रिसिशन से मिस नहीं हो सकता. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? Can you give us a hint on what our project will be tomorrow? I will be building a project tomorrow as well. मैं जस्ट वर्कशॉप से 1 घंटा पहले ही काम परफॉर्म कर रहा होता हूँ, और 2 घंटे पहले काम परफॉर्म करके रियल टाइम पढ़ा देता हूँ. मेरे दिमाग में फ्रेश भी रहता है. पहले पढ़ा दूंगा तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाए, लेकिन मेरी आदत है एंड टाइम पे काम करने की. सो बट स्टिल इट विल बी ऑन क्लस्टरिंग, और मे बी आई विल परफॉर्म कस्टमर सेगमेंटेशंस. And it's good to tell you कि customer segmentation पे काम कराऊंगा, so you can create more questions for you, for me, कि कल आप मुझे सवालों से भर दें regarding customer segmentations. जितने मुझे सवाल करें, you can ask me tomorrow. So we may build customer segmentation. एक hint दे दी, क्या पता कुछ और बनाए, but we may, there are some chances. All right, रोहेल अली खान asked, sir, recommendation system इसी algorithm पे बेस करता है? Recommendation system has some different scenarios. Collaborative and filtering systems उसके अंदर होते हैं. अब ये एक hierarchical clustering जो है ना, customer segmentations डेवलप कर सकता है फॉर पर्सनलाइजेशन, बट सारे काम जो है रिकमेंडेड सिस्टम के इस सिंगल एल्गोरिथम पे परफॉर्म नहीं हो सकते. इट कैन या मेक्स इट कैन सेगमेंट ऑल द व्यूअर्स, ऑल द ऑडियंस, लेकिन फिर भी इट विल लैक इन दिस सिनेरियो. दैट इज व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स इन फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि हम इंशाल्लाह सबसे लास्ट में जाकर देखेंगे, सबसे लास्ट में. But I don't think so. Hierarchical clustering will be good for recombinant system as far we can talk for industrial scale. कुछ भी कर सकते हो आप किसी भी एल्गोरिथम से, लेकिन जब बात होती है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की एक्यूरेसी क्या होगी और किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, एंड इज इट गुड टू परफॉर्म दिस इन रियल लाइफ, सो उस सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ. गुड क्वेश्चन रोहिल. एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? अगर नहीं है, सो वी गोना एंड दिस क्लास विद इन 5 minutes. All right. So I guess okay. किसी को dendrogram समझ में नहीं आया. So I'm gonna give the recap of dendrogram and then we'll end the class. All right. तब तक किसी को कोई भी questions हो, you can ask me. For assume again we are studying dendrogram A B C D E F. हमारे पास ये सारे dendrograms हैं. और ये हम इसके ऊपर डेंडोग्राम डेवलप हो रहा है, सॉरी डेटा पॉइंट्स हैं और उनके ऊपर डेंडोग्राम डेवलप हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग. किस तरीके से परफॉर्म होती है ये, अभी हम देखते हैं इसका डिविजिव मेथड. भाई पहले इसने ले लिए तमाम डेटा पॉइंट्स को अपने पास, ए बी सी डी ई एफ. अब ये जो ऊपर वाली लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है ना, वो ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट हो रही है. किसने क्या किया, एक क्लस्टर इसमें डिवाइड कर दिया, ये पूरा, अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा हो आपको, एक क्लस्टर इस पे डिवाइड कर दिया है और एक क्लस्टर इस पे डिवाइड कर दिया है. तो ये हमारा जो क्लस्टर जब डिवाइड हो गया है यहाँ पे ए बी का और सी डी ई एफ का, तो यहाँ पे भी आप देखो तो ए बी और सी डी ई एफ का एक दो क्लस्टर इसने डिवाइड कर दिए. फिर इसने ए और बी को मजीद डिवाइड कर दिया, एक तरफ ए और बी को मजीद डिवाइड कर दिया. अब सी डी ई एफ को मजीद डिवाइड करना है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो सबसे ज्यादा दूर जो है वो सी है. तो उसने यहाँ पे सी को मजीद पहले डिवाइड कर दिया और डी एफ अभी साथ आगे चल रहा है. फिर डी एफ मजीद नीचे आए, फिर उसने कहा कि भाई डी ई और एफ से सबसे ज्यादा दूर है, तो फिर उसने डी को भी और पहले डिवाइड कर दिया. फिर उसके बाद जाके ई और एफ के मल्टीपल डिविजन्स बन रहे होते हैं. सो दिस इज हाउ डेंड्रोग्राम इज फॉर्मिंग बाय हायरार्की क्लस्टरिंग. एक 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 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उसकी हायरार्की डिवाइड होती चली जाती है. सो दिस इज डेंड्रोग्राम. I hope you have understand and have make some sense. All right. So people saying no questions, sir. Okay. It seems so because अचानक से एक attendee की huge amount decrease हुई. It means they have learned everything. ऐसा तभी होता है जब Q&A बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए. All right. So it seems that there are no pretty much questions. So now we are going to end our class.
All right, very good question. Please tell me your name. I like this question. Myth or not, ML is only used when we have relatively small data. If we have large amount of data, deep learning is way better. This is not a myth. This is actually the scenario. मशीन लर्निंग स्मॉल डेटा के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है. स्मॉल डेटा हमारे पास हो या कम डेटा हो हमारे पास, तो वहाँ पे डीप लर्निंग परफॉर्म नहीं करती. एक बहुत अच्छी लाइन है आयरन मैन की, दैट चूंटी को मारने के लिए हाथी नहीं बुलाते. सो इट्स लाइक सेम थिंग कि आप छोटे से काम के लिए डीप लर्निंग परफॉर्म नहीं करते, उसके लिए फिर आप मशीन लर्निंग ही परफॉर्म करते हो. लेकिन जब आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है, आप इमेज ही ले लें, आप कंप्यूटर विजन का सिनेरियो ले लेते हैं. चलें, कंप्यूटर विजन का सिनेरियो कुछ इस तरीके से ले लें कि मेरे पास इमेज है 1280 बाय 720 विच इज़ नॉर्मल एच डी रेजोल्यूशन, और 30 फ्रेम्स डेवलप हो रहे हैं कैमरा से, और उस 30 फ्रेम्स पे लगातार मुझे ना रियल टाइम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करनी है. सो अगर आप 1280 को 720 से मल्टीप्लाई करें ना, तो टोटल हमारे पास क्या आंसर आता है. लेट मी सी. 1280 मल्टीप्लाई बाय विलेज मल्टीप्लाई, ओके, 720. तो हमारे पास ये आ गया रेजोल्यूशन. नहीं भाई, हम तो कैलकुलेट कर रहे थे, ये तो रेजोल्यूशन खोल के बैठ गया. तो ये हमारे पास ना ये एक अच्छी खासी अमाउंट आ गई सब एक पिक्चर के अंदर. फिर उसको अगर हम मजीद 30 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम उसको मजीद 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो ना, तो हमारे पास कितनी सारी वैल्यूज आ रही हैं सब पर्टिकुलर सेकंड के अंदर. तो ये तो बेचारा मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले कोई खत्म हो चुका होगा. तो यहाँ पे दैट इज व्हाई वी यूज डीप लर्निंग फॉर दो सिनेरियोज, क्योंकि यहाँ पे एक एक पिक्सल, एक न्यूमेरिकल, और एक नहीं, समटाइम्स दे आर रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज एज वेल, सम पिक्सेल्स. तो या इसमें ये इस केस के अंदर ना हम लोग डीप लर्निंग यूज कर रहे होते हैं. लेकिन जब हमारे पास सैंपल ही 150 होंगे या 100 सैंपल होंगे टोटल रेजोल्यूशन को मिला के, अब जैसे हमने उस दिन उसकी डिजिट्स रिकॉग्निशन करी 8x8 पिक्सल की रेजोल्यूशन पे, जो मशीन लर्निंग ने आराम से संभाल लिया. तो वो अगर हम चेक करें कि क्या कितने बनते हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट पे 64 बनेंगे. बाय द वे 8 8 64 होता है. तो हमारे पास 64 बन रहे हैं, और वो कोई वीडियो के अंदर नहीं था, वो जैसे एक पिक्चर थी. सो यू कैन सी इट इज वी आर हैविंग अ रिलेटिवली ह्यूज डिस्टेंस इन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग जो कि हमारे पास होता है. ऑल राइट, आई जस्ट वांट टू अनाउंस अ वेरी गुड थिंग जो कि बहुत सारों को ऑलरेडी पता होगी, दैट गूगल हैज अनाउंस्ड कि आप गूगल असिस्टेंट पे जाएं, और यहाँ पे तो नहीं खुलेगा बट इन मोबाइल यू कैन एक्सेस इट. और गूगल हैज अनाउंस अ न्यू फीचर, व्हाट इज दिस सॉन्ग. तो आप जाके आज गूगल पे बोलेंगे व्हाट इज दिस सॉन्ग, और उस सॉन्ग पे जाने आप जब आपके पास एक खुल जाएगा, लाइक एक पैनल खुल जाएगा, उस पर आपका वो सॉन्ग सुनेगा. आपको अगर सॉन्ग याद नहीं है, सो व्हाट विल यू डू, यू कैन लाइक हम अ सॉन्ग लाइक इस तरह का साउंड निकालें इन अ स्पेसिफिक रिदम, एक क्वार्टर पेस के अंदर, और वो आपको बताएगा ये कौन सा सॉन्ग है. तो ये सारा एनएलपी के थ्रू हो रही है. इट सीम्स लाइक कि गूगल ने इंटरनेट पे पड़ा हर सॉन्ग इंडेक्स कर चुका है. तो इट्स अ वेरी ग्रेट इन्वेंशन डन बाय गूगल. मस्ट एक्सप्लोर दैट innovation, or you can say invention, and we'll see you soon. Since we have luxury of large amount of data nowadays, are the existence of transfer or all right. जी बिल्कुल, एमएल मॉडल अभी भी रिलेटिवली बहुत यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है. एमएल मॉडल वहाँ यूज होते हैं व्हेन वी आर हैविंग, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सोल्यूशन डेवलप कर रहा था, इन दैट सिनेरियो डीप लर्निंग वाज नॉट गिविंग मी हाई रिजल्ट्स, तो वहाँ पे फिर मशीन लर्निंग की मुझे इस्तेमाल करनी पड़ी. इवन इन द मेडिकल सिनेरियो ऐसा होता है, और हो जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती. खासतौर पे एनसेम्बलिंग टेक्निक्स मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होती हैं कि एक ही साथ हम 3 4 मॉडल अप्लाई कर रहे हो, जो कि हम आगे देखेंगे प्रोडक्शन के अंदर. तो मशीन लर्निंग बिल्कुल आज भी यूज होती है, एंड मशीन लर्निंग इज स्टिल यूजफुल टू लर्न टू बिफोर लर्निंग डीप लर्निंग. दैट इज व्हाई वी आल्सो लर्न मशीन लर्निंग. ऑलराइट, कैन वी इंक्रीज द प्रोसेसिंग कैपेसिटी, कांट थिंक ऑफ एमएल. भाई आप अपने कंप्यूटेशन पावर जितनी मर्जी बढ़ा लो, जब उस एल्गोरिथम के अंदर इतनी पावर ही नहीं होगी ना, तो आप इतनी खास प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज नहीं कर सकते. मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क्स होते किस तरीके से हैं. वैसे तो ये बहुत बात की चीज़ है.
5-6 दिन बाद आएगी आप लोगों के भी। लेकिन देखिए न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से होते हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल में डाटा सिंपल एक लेयर में फ्लो करता है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास मॉडल आता है, वो पहले 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, फिर चारों तरह के वेट्स में हिडन लेयर्स होती हैं बहुत सारी, इतनी टफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसके से डाटा डिवाइड होकर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस डेवलप हो रहे होते हैं, वेट और इसमें लेयर्स का, और किस तरह हमें लेयर लगानी है। तो ये बड़ा टफ कंसेप्ट होता है, उसके बाद एक आउटपुट निकल रहा होता है, तब ये न्यूरल आर्किटेक्चर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग यू कैन से, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तभी इसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है, बट इट रिक्वायर्स हाई कंप्यूटेशन पावर एज वेल। अगर आप जीपीयू वगैरह की बात करें तो वो उनकी बहुत ज़रूरत होती है फॉर स्पेशली इन ट्रेनिंग द मॉडल। All right, any question guys, or I will just end the class? All right, no questions. So okay, we'll see you tomorrow, or we'll see you tomorrow with some another algorithm or maybe project, inshallah. And till that, Allah Hafiz, bye bye.